Hello students, we have to discuss second chapter solution. Now what is the definition of solution? The homogeneous mixture of solute and solvent is called solution. Which kind of mixture? Homogeneous mixture of solute and solvent is called solution. और आप जानते हो कि solution के concentration को find करने के लिए आपको different units की ज़रूरत होगी. That's why first unit is what? First is the molarity. What is the definition of molarity? ये आप क्लास 11 में किए भी होगे. It is defined as the number of moles of solute. It is defined as the number of moles of solute. किसके मोल्स भाई? Number of moles of solutes present in 1 liter of solution. Present in 1 liter of solution. It is denoted by capital M. It is denoted by capital M. What is the capital M formula? Number of moles of solute divided by volume of solution. And the mathematical equation is what? Mathematical equation is the given weight of solute divided by molecular weight of solute and whole divided by volume of solution in liter. Solution का वॉल्यूम किस में लोगे भाई? लीटर में. ओके. व्हाट इज द यूनिट? मोल्स पर लीटर. व्हाट इज द यूनिट? मोल्स पर लीटर. क्वेश्चन दे रखा है, आप देखो. कैलकुलेट मोलरिटी व्हेन 12 ग्राम यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 डिसॉल्व इन 800 ml प्रेजेंट इन 800 ml ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन के 800 ml में प्रेजेंट है. कैपिटल एम पूछ रखा है. फार्मूला इज रिटन हियर. m इज इक्वल टू W अपॉन MW होल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. नाउ पुट द वैल्यू. कैपिटल M 12 upon 60. 12 is the given weight of urea. 60 is the molecular weight of urea. 0.8 liter of an aqueous solution. तो इधर हो गया 1/5 होल डिवाइड बाई 0.8. सॉल्व करेंगे, आ जाएगा क्या? 0.25 मोल्स पर लीटर. नेक्स्ट concentration term is molality. It is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. It is denoted by small m. Formula is written here. Small m is equal to number of moles of solute divided by weight of solvent in kg. ये ध्यान देना. weight of solvent in kg. if in gram is given then divided by 1000. ग्राम में दिया होगा, 1000 से क्या कर लोगे आप? डिवाइड कर लोगे. ओके. नेक्स्ट फार्मूला. व्हाट इज द फार्मूला? W अपॉन MW होल डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ओके. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ एन एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन if 54 ग्राम. कितने ग्राम ले रखे हैं? if 54 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1.5 kg ऑफ H2O. कितने kg H2O में? 1.5 kg. अभी आप देखो, बहुत सिंपल है. स्मॉल एन फाइंड करना है. ग्लूकोज का वेट 54 गिवन है. मॉलिक्यूलर 180 होता है. टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा 1.5. वेरी सिंपल. 54 अपॉन 180 सॉल्व कर लोगे, आएगा 0.2 की यूनिट क्या होगी? मोल्स पर केजी. ओके. इसी तरह से आप नॉर्मलिटी भी कर लेंगे. नॉर्मलिटी क्लास 11 में किया जा चुका है और इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. 11 में कर भी रखा है. अब आते हैं, हम देखते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन. बेसिकली ये टाइप किस बेसिस पे बना है, ये आप समझने की कोशिश करो. कहता है कि when solution is formed with the help of volatile solvent and volatile solute. Volatile solvent and volatile solute, both are volatile. Solute is volatile and solvent is volatile. Then first type. What is the second?
volatile solvent but non-volatile solute. Volatile solvent but non-volatile. This is the second type of the solution. Let we start first one, volatile solvent and volatile solute. Volatile solvent and volatile solute. क्या कहता है? When volatile solvent mixed with volatile solute, when volatile solvent mixed with volatile solute and form a solution, the vapor pressure of solution is the sum of, vapor pressure of solution की बात कर रहा है, is the sum of what? Is the sum of partial vapor pressure of liquid A and liquid B. दो लिक्विड आपने ऐड कर रखा है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड कर दोगे, टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा. वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल लिक्विड कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज राउल्ट्स लॉ. With the help of Raoult's law, we have to calculate partial vapor pressure of liquid. Partial vapor pressure of liquid. Now, according to Raoult's law, the partial vapor pressure of any volatile liquid is directly proportional to its mole fraction. क्या कहता है? The partial vapor pressure of any volatile liquid की बात हो रही है, liquid is directly proportional to its mole fraction. Suppose किया आपने कि liquid A का partial pressure आपने find करना है, तो PA is the partial pressure of liquid A, XA is the mole fraction of liquid A. According to Raoult's law, PA directly proportional to XA. Partial pressure of A, liquid A is directly proportional to mole fraction of A, and now PA is equal to P naught A into XA, P naught A into XA. ओके. सिमिलरली जैसे आपने A के लिए फाइंड किया, वैसे आपने किसके लिए फाइंड कर लिया? B के लिए. सेम पैटर्न. अब कहता है कि वहाँ पे व्हाट इज़ द PA. PA क्या है भाई? PA इज़ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A. PA समझ में आ गया आपको. सेकंड क्या कहता है? PB पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड B. What is P naught A? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A. प्योर लिक्विड A का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होगा, दैट रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ P naught A. एंड सिमिलरली P naught B इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A. What is the XA? Mole fraction of liquid A or component A, and second XB is the mole fraction of component B. और मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आप पढ़ रखे हो, यू नो XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB and XB is equal to NB upon NA plus NB. This is the formula and Raoult's law to find out partial vapor pressure and total vapor pressure of any solution which is formed by two volatile liquids. Now question 1. अच्छा, उसके पहले ये जो ऐड कर दोगे तो पी टोटल की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी. ओके. नाउ अब आप करते हैं कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. कैलकुलेट टोटल वेपर ऑफ सोल्यूशन व्हेन 36 ग्राम FH2O. 36 ग्राम H2O दे रखा है. सीधी सी बात है, 36 को आप कितने से डिवाइड कर लोगे? 18 से, तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 2. मिक्स विथ 64 ग्राम. 64 ग्राम को कितने से डिवाइड कर देंगे? 32, बिकॉज 32 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3OH. ओके. तो आप दोनों के मोल्स, अच्छा पी नॉट H2O दे रखा है, पी नॉट CH3OH इज इक्वल टू 560 सपोज है वैल्यू. ओके. अभी आप वैल्यू पुट कर दो. Na की वैल्यू पुट कर दिया, Na अपॉन Na प्लस NB, पी नॉट बी Na अपॉन Na प्लस NB. ओके. फिर आप देखो इनके मोल्स वाटर के 2 हैं, इनके भी मोल्स 2 थे. 2 + 2 = 4, 2/4 हो गया. इधर भी 2/4 को सॉल्व कर देंगे, 660 आ गया. 660 आ गया आपका. क्या 660 mm ऑफ Hg इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज फॉर्म व्हेन वाटर मिक्स्ड विथ एथिल अल्कोहल. सेम पैटर्न, different question.
कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर इफ 36 ग्राम ऑफ H2O मिक्सड विथ 92 ग्राम ऑफ C2H5OH if P naught H2O is given, P naught CS2H5 is given, same pattern, no any doubt. मोल फ्रैक्शन फाइंड करोगे, मोल्स फाइंड करोगे, मोल फ्रैक्शन फाइंड करोगे, वैल्यू सब करके 660 mm of Hg. वेरी सिंपल, नोट्स में आपके दे रखे हैं. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH3OH. प्योर CH3OH की बात कर रहा है. मीन्स आपसे पूछ रहा है P naught CH3OH. क्या पूछ रहा है? P naught CH3OH. ओके, तो सेम कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. और कहता क्या है, ये पूछा है इसमें, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन एक्वस CH3OH सोल्यूशन इज 2/3. वाटर का मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है 2/3. और सभी लोग आप पढ़ रखे हो, पहले भी हम लोग जानते हैं कि XA प्लस XB इज इक्वल टू XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. XA गिवन है तो आप XB फाइंड कर लोगे. कैसे? XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB. सेम पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा आपको. देखो, वाटर मोल इज गिवन, मोल फ्रैक्शन इज गिवन, देन C2H5 मोल फ्रैक्शन इज 1 माइनस 2/3. ओके, तो आप सब कर लोगे वैल्यू. अच्छा, टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है एंड टोटल वेपर प्रेशर इज 660 एंड P naught H2O 760. पुट द वैल्यू of P total, P naught H2O, X H2O, and finally we get P naught C2H5OH. C2H5OH, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. C2H5OH 520 mm of Hg. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. आप अपने नोट्स में देखेंगे, सॉल्व कर लेंगे. मुझे ये नहीं समझाना है, सिंपल है. कैलकुलेट मोलर रेशियो ऑफ CH3OH एंड C2H5OH इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ CH3OH एंड C2H5OH सोल्यूशन इज 540. टोटल दे रखा है, P naught CH3OH दे रखा है, P naught C2H5OH देख रखा है. आपसे पूछा क्या है? मोलर रेशियो. क्या पूछा है? मोलर रेशियो. मीन्स इनके मोल्स के दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लीजिएगा. मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकाल लेंगे तो आपको आ जाएगा 2/3. NCERT में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए. मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ राउल्स लॉ, विच काइंड ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस आर गिवन. मेनली आपको वेपर प्रेशर पे सारे आप सवाल आपको दिए जाते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ C2H5OH. अभी वेट पूछ लिया है. अभी क्या कर लिया? वेट पूछ लिया. ये सारी चीज़ें तो आपसे करते ही रहना है, बहुत बड़ा इशू नहीं है. अभी आपको वेट निकालना है तो इसी चीज़ पे आप करेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ. ये हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू, गुड डे.